Good morning, Narinder ji. Good Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to morning. Dil Diya Galla. Thank you. Good morning. Good morning. Beautiful day today. Welcome. Beautiful day. Well, beautiful Monday, beginning of the week. और मैं एक और भी कहना चाहती हूँ कि हमको 1 साल हो गया आज कि हमने दिल दिया गला शुरू किया था. Actually, the date was Monday, May 18th, but today 1 साल के बाद डेट बदल गई 17th है. So tomorrow actually is officially the day that we started 1 year ago. So we are very happy कि 1 साल हो गया दिल दियां गल्लां में थोड़ा फर्क चेंजेस भी आ रही. We made a lot of changes, but basically it's the same thing. Talk from your heart. वही होता है. And Monday morning को good morning Nalini and good morning. And then Monday morning को we have Narinder ji to start the whole week with the very very good important talks. And हमको सबको सीखना चाहिए उनसे. And आज मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ नरेंद्र जी से कि भाई what is the difference between spirituality and religion? Religion और spirituality, okay? इसकी कंट्रोवर्सी आजकल इट्स द सेम थिंग बट कंट्रोवर्सी बहुत हो जाती है. तो थोड़ा एक्सप्लेन करें हमको कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज दिस इज हैपनिंग. गुड मॉर्निंग अगेन. हाँ जी, हाँ जी. Vinay, good morning. And first of all, I am tempted to congratulate you on the completion of 1 year, this थैंक यू. beautiful program. It's थैंक a service to the society and somebody has to do it. You are blessed that you got this opportunity and you used it at the optimum level with compassion and love. And या you have brought people of different walks of life on the same platform to share thoughts on different subjects. And all the panelists periodically they come at your show. They're all talented people. ओ या So once again, I compliment you for your success. So regarding the question you asked me about थैंक यू सो मच. religion and spirituality, it's a very timely question. If you look around, uh, everybody pretends to be religious. There are a lot of temple, itne gurdware, itne masjid, churches nahi the. Even lately, So many they have are come up. popping up So many. here and there, Yes, you're right. and people, it's an information age, and people are getting information from all corners, and most of the emails which we get, they are very good emails. So having said that, if you study the minutely microscopic study of the individual, people are not getting any message. Mm-hmm. A lot of good messages floating around, but there is no reception. So our antenna, personal antenna, they are not getting the information screened out and improve the life. The quality of life had deteriorated. But this is divine information, knowledge. Right, The quality should have improved, right. but it has gone down. So we have to understand why it is happening. So this thought came to my mind this morning that religion and spirituality, that is the root cause of this problem, this misunderstanding that we are not holding the right information. Religion puts you, let me put it differently. God is one. There is no doubt. Every religion, every faith, I will use the word faith. Every faith believes that God is one. Right. And God's language is one. And that language name is love, Love. All other languages in the world, which are approximately 364 languages in the world, they are man-made. Right. And that is the problem. So when Yes. God's message is being interpreted in different languages, they bring different denominations. And the real message is lost. The real Yes, message is lost. I agree. I agree. God's language is love, Yeah. but that has not been said in different languages. And second, the
God created this phenomenal creation in a humongous diversity. And there's so much diversity even in our body. If you look at your body, Yes. there are so many organs, so many cells, molecules, and Oh, yeah. I mean, and there is a coordination. If my pinky, right hand pinky is paining, Right. my whole body is cooperate. But in That the is true. society in which we live, we don't act that way. So it is only due to the religion. So religions are using the languages which are different languages. But spirituality's language is love. Love. The Right. language of spirituality is love. Love. Yes. And there is no contrast between these two approaches. If I am religious, I am in a box due to my own language. Right. I put my language and all my religious books are in that language. And I only, most of the things I know in that language. Language. So I am in the box. And so most of the religion, most of the faiths are using their own language. Right. And that is one reason that people are divided. People are divided. They are talking the same thing, but they are talking in their own boxes. Oh, yes, that's true. Spirituality, देखो ना on ये the other hand, नरेंद्र जी Spirit- अभी लास्ट वीक से ही आई मीन पहले से ही हो रही है, वैसे मैंने ज़्यादा नोटिस तो लास्ट वीक से ही किया है कि देखो ना मिडिल ईस्ट में कितनी गड़बड़ हो रही है, राइट? बेसिकली दे टॉकिंग द सेम रिलीजन, सेम बातें तो वही होती हैं, लेकिन रिलीजन नेम डिफरेंट है. and they're religious. in spirituality, That's the you are out of the box. yes. You are out of the box, and the windows of your minds are open. In religion, there are only one or two windows of your mind are open. The other 10 windows of your mind are closed. Closed, yes, that's true. But in spirituality, all the windows of your mind are open. You are expanded. You expand. And I will give you the example that if you take a needle and put it in the water, what happens? It sinks, Right. right? But look at the phenomenal creation of these cruises. Oh, They float with thousands and thousands of people and so much activity. So what is the reason? The water is same. yeah. The water is same. So there is a physical, it is called the law of immersion. That is a law that the weight of the water displaced by the weight of the entity must be more than the weight of the entity itself. So जो हमने needle की example दी, needle का जो weight है, जब उसको आप पानी में डालते हो, तो जितना water displace होता है, वो कम होता है. Needle का weight ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाता है, right? Sink कर जाती है. लेकिन ये जो ship बनते हैं, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं through the law of immersion. Right. The water displaced by the weight of the ship must be more than the weight of the ship itself. It's a law. Oh, okay. So that technique is used, and the water displaced by the ship is more. That's why it is floating. So now the same scenario, if we apply to human beings, if we are selfish in our thinking, if we are selfish in our day-to-day life, if the windows of our minds are closed, only one or two windows are open, then our weight is more than the weight of the activities, divinity around you. And we don't go anywhere. We are just floating around there. And actually, as a matter of fact, we sink in the creation. Creation is beautiful, but we are not beautiful because we spend so much time in these petty things. But people who are spiritual, they expand. They expand. They do a lot of volunteer work. Their attitude is selflessness. Right. Their attitude is empathy. Their attitude is compassion. So with those approaches, they touch so many people.
And so the weight, their weight is become less than the weight of the activities they do. So they float, they levitate. So that levitation comes, when levitation comes, you Right. become spiritual and you respect every faith Uh, with total equality. Okay, these are the different paths, different paths. But my approach must be that. Otherwise, I am just stuck with my own path. I yeah. don't care. There are 90 other paths also. So if we understand that we have to expand, we should become selfless. And that is the litmus test of spirituality. Is you are expanding yourself each day. You, through your selfless thinking, Thinking. you are Right. touching more people, doing volunteer work, Work. and without being paid for, by any, these are all selfless Right. effort. Right. That's true. So, Bilkul, this bilkul. type of approach is called spiritual. Reality. It is universal, and that is the language of the, you are using the language of the God, which is love. And love comes only when you are levitating, not in the box. No. So No. people should admire and appreciate this approach, that your faith is good faith, but there are 90 others. So because everybody is talking of the God, so come out of the box Box. So and see, get the I flavor. mean, in Get, spirituality, yeah. spirituality में there's no such thing as gay religion. ये है, वो है. It's all different. It's all together. Spirituality, you doing working hard. You, well, जैसे आपने बोला है, voluntary कर रहे हैं, ये भी अच्छे काम कर रहे हैं. They are getting out of the box, so they're doing the same thing instead of thinking कि ये मेरा religion है तो मैंने ऐसे कर, you know, like yeah, you're all getting together and doing it together. So that's what everybody should be doing. but वो नहीं होता ना, कैसे And change like करना? that, we have a universal body, United Yeah, Nations, right? right. After That's we after World War II, they came up with the idea that war is no good. So they made up this UN or United Nations organization. yeah, So there, all the projects are worldwide, worldwide. And yes, people working in that organization, they come from all over the world, all over the world. So that is United Nations. They got the idea of universality, that yeah, world is one. It has to be managed that way. And then we do many projects like World Peace. mm-hmm. There are a lot of conferences, World Peace. Again, Right, world peace right. can come only if we are peaceful, individual That people, is true. That is true. because charity begins at home. You Yeah, cannot create anything unless you are in that. in that So thing. Yeah, world peace is they call it utopian idea. It is in the air, but it is not practical because people are not understanding that charity begins at home. home. I have to be peaceful to make the world peaceful. जब हम चेंज होते हैं तो वर्ल्ड चेंज होती है. We are the change. So under the concept of universality, we Yes, must admire the creation as it is. yes. ये तो हमने अपने आप बना लिए हुए, किसी भी फेथ के फाउंडर ने, ये I दिस इज know. वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी फेथ के हरविंदर फाउंडर ने, हरविंदर कह रही है कि best thing, the best thing is to do volunteer work or any seva. You get the best meditation where you don't have to worry about work, pay, just seva. Best peace of your mind. सेवा में तो बहुत बहुत ही बिल्कुल ठीक बोला कि you don't need money. comes, yeah, कुछ we पैसे की जरूरत haven't, नहीं है. You just do that, you get the best satisfaction. You when you do the seva, तो तुमको सबसे ज्यादा you feel good yourself. That's the best pay you can get. What else pay you want? Best pay, best everything. this तो पैसे की जरूरत नहीं है. Just you get peace of mind and you get satisfaction. Mental satisfaction वो भी पेमेंट ही होगी ना एक किस्म की. माइंड की पेमेंट होगी. and I would fine tune this thought a little bit more. Yeah. Seva starts with you. I have to do seva to myself. I must understand my body. Right. If I don't understand my body in which I live, then it's a tragedy. We live so much. Bhagavad Gita says that we are not the bodies.
We are living Right. in the body. Living in the body. Yeah. So if I am living in the body, then I must understand the functionality of. So once I have that knowledge through the practice, like you said, it's seva and Mhm. meditation. Yes. Meditation is just a word. First of all, I have to, Actually, like yes. you have to wash your hands I to know. Yeah. eat, either to eat or to cook. Cook. If I don't wash my hands at these 2 points, that when I am cooking, if I don't wash my hands, the food will be dirty. It does Oh not yeah. matter. That The same concept is if I eat you feel it. food I mean, without yeah. washing hands. तो मेडिटेशन करने के लिए पहले आपको शरीर को साफ करना साफ पड़ेगा करना पड़ेगा. और साफ का मतलब है कि the other day we shared at this platform that there are 8 steps. यम, नियम, Yes. आसन, प्राणायाम, ये तो है बॉडी की आउटर बॉडी को ठीक करने का. कि पहला है यम कि नॉन वायलेंस. Yeah. नॉन वायलेंस इन थिंक, Non-violence. नॉन वायलेंस जो है कई तरह की है. नॉन वायलेंस इन थिंकिंग कि किसी के बारे में गलत सोचना वो वायलेंस है. Violence है. Yeah. वायलेंस है वो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसको कुछ पता नहीं. पता नहीं है. Right. I am damaging my layer. So then when I will sit in the meditation, ये चीजें याद आएंगी. मेडिटेशन तो आप भूल जाओ, वो तो बहुत दूर की बात. सेकंड इसका पहले स्टेप में प्योरिटी. जो आप खाते हो वो क्या खाते हो, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट, डज नॉट मैटर. तो उस ईटिंग में प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें फियर नहीं होना चाहिए. क्योंकि इफ आई एम गेटिंग माय फूड थ्रू fear or violence, उसको dark energy, it enters in your body and your whole system Okay. is Yes. poisonous. Poisonous. We are Yeah. anxious, we are sleepless, we have anxiety. So many, the immune system is compromised only due to that black energy. So if I take care of my food under this step, then when I will sit for meditation, I will be a better candidate. And That's then true. second jump, I should be disciplined. Yes. क्योंकि Discipline is very meditation में important. Yeah. discipline चाहिए. That's true. और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा है टाइम का कॉन्सेप्ट. Oh yeah. रिस्पेक्ट द टाइम. जिसका Respect. जो Yeah. टाइम Oh है yeah. तो उसको मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आई एम नॉट द बेनिफिशियरी. द थर्ड इज द आसन. हमें ये नहीं पता हमने बैठने कैसे. जैसे हम कार में बैठते हैं, देयर इज अ ट्रैफिक लॉ रूल कि यू हैव टू बकल अप. Right. राइट. अगर मैं बकल अप नहीं करता, मैं कहता हूँ नो आई एम ऑलराइट, आई एम ओके. You are not okay. You will be killed and you will kill many others because you are not obeying the traffic laws. The same concept is applicable in your body. I must know how to sit, how to stand. इसकी flexibility कहीं lose ना हो जाए, तो you have to do yoga. Yoga means outer frame को, जिसको exercise आप कहते हो. जिम जितने भी है, वॉकिंग, स्विमिंग, जिम, दीज आर ऑल आउटर फ्रेम को ठीक करने के लिए. तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी इज compromised, you are not a candidate of meditation. आपकी लेग्स पेन करेंगी, आपकी बैक पेन करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक नहीं है. फोर्थ है प्राणायाम. ये जो प्राण शक्ति है जो हमारे शरीर में है, जिससे हम जिंदा हैं, जब ये चली जाती है तो वी आर डेड. देयर इज नो लाइफ. राइट. सो ये प्राण शक्ति देखो, ये ऑटोमेटिक है. यू डोंट डू एनीथिंग. जो एयर हमारे अंदर जाती है या बाहर निकलती है, वी डोंट डू एनीथिंग. वी आर टॉकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये चलती रहती है. लेकिन इतनी बड़ी जो शरीर में शक्ति है, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन से जाए, तो उससे आपकी एक तो हार्मनी है माइंड की. तो जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, तो इफ वी आर टेकिंग दीज स्टेप्स, कि मैंने अपने प्राणायाम के थ्रू अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट किया हुआ है,
मैंने प्योरिटी क्रिएट की हुई है, आई एम ईटिंग द राइट फूड, आई एम हैविंग द लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन माय बॉडी थ्रू योगा, थ्रू एक्सरसाइज। यस ये 4 स्टेप लेने के बाद फिर 4 स्टेप्स हैं मेडिटेशन, कि वो मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी। तो दिस इज, people are taking meditation just like a joke. It is not, it is नो serious. नो इट्स वेरी सीरियस आई And नो we must understand. और उसके लिए, वो तो उसको है अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी बॉडी का पहले पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी की फंक्शनैलिटी कैसे है। देखो बिल्कुल हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ उसमें 7 एनर्जी चक्रास हैं, चक्रास, राइट, एनर्जी सेंटर्स। लेकिन किसी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए लोगों को, majority of the people as they grow they have lot of pains. जब हम कहते हैं जी डिस्क डिस्प्लेस हो या गया, या what happened, the energy center is moved. मूड जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जो डिस्क्स हैं, या वो एक मूव हो गई है, बिकॉज आई वाज नॉट फ्लेक्सिबल, मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो My God. दिस इज द नॉलेज which makes you competent to do the meditation. अगर मैं ये स्टेप्स नहीं लेता तो वो बैठ के मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तो वो जो आपको आज चीजें याद नहीं आ रही, वो आपको सारी चीजें याद आएंगी, याद आ जाएंगे क्योंकि दैट टाइम माइंड या आई नो So that is what I am saying with utmost humility. ये ये देखो ना meditation जो है वो, it is not a very easy thing. It is a technical thing and it has to be understood and try to do certain serious steps. रमा in जी order to- हाँ जी यहाँ पर आ रही हैं कमेंट्स आ रहे हैं रमा जी भी कह रही हैं पहले कि पहले हमने करी थी ना बात सेवा की, बट एवरीबडी इज नॉट एबल टू डू वॉलंटियर, कई बार हेल्थ वाइज नहीं कर सकते, आई नो आई अंडरस्टैंड। एंड देन गार्गी सेइंग डिसिप्लिन इज द स्टेयरकेस ऑफ सक्सेस, ऑल्सो वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। बिल्कुल ठीक बोला है, जो हम कहते हैं वो करना चाहिए। And also she says that exercise and being with nature make mind fresh. एंड रमा जी कह रही हैं अग्रीड, आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो देखो ना मेडिटेशन में देखो व्हेन यू आप जैसे करते हो आप, इट्स अ वेरी लाइक आपने बोला यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। जब कहते हो टू क्लोज द व्हेन यू हैव टू क्लोज योर आईज फॉर अबाउट 10 मिनट्स और 15 एटलीस्ट 10 मिनट्स तो हो ही जाते हैं ना, क्लोज योर आईज एंड पीपल गेट ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट, पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमता है। उसको डिसिप्लिन करने में वो सेट अप बिल्कुल करना चाहिए। दैट इज अ टाइम व्हेन यू रियली हैव टू डिसिप्लिन योर माइंड। वो नहीं, प्रैक्टिस सही होगा ना, दैट इज अ टाइम, लास्ट दैट टाइम इज आई शेयर विद यू या कि आंखें बंद करने से यू आर क्लोजिंग वन सेंस ऑब्जेक्ट। राइट आपके एग्जैक्टली 5 सेंस या ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको यस इंफॉर्मेशन देते हैं, या साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, या ईयर्स हैं, आईज हैं, नोज है, माउथ है, स्किन है, ये 5 तरह की जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वो आपके माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर मैंने, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, बॉडी को रेगुलेट करके डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया और मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, तो आंखें बंद करने से मैंने एक सोर्स को बंद किया, बाकी 4 सोर्सेज आर एक्टिव। एक्टिव राइट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उसको दैट इज या व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन हियरिंग है, या हीरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, वो सारी की सारी वैसे हैं, सिर्फ मैंने एक सोर्स बंद किया, आंखें बंद कर ली, वो मेडिटेशन नहीं है। वो that's what I'm meditation saying, नहीं है। उस पे we have लेकिन to वो एक स्टेप है। yeah but that is a thing that everybody should be disciplined to do, discipline करना चाहिए ना, ताकि when you are really doing सुषमा सरीन भी आई हैं, definitely discipline is must have before meditation, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना both not easy to do but that's what we have to do because when you एक और close your eyes तो तुम अगर उसमें, कुछ सोच रहे हो ये वो then what is the use, that's no use at all। और उसमें भी ना जी एक और बात कि ये जो हमारी मेमोरी है ना, मेमोरी हाँ जिसमें जी हम चीजें रखते हैं, तो अगर मेरी मेमोरी आई एम नॉट यूजिंग इन द राइट वे, आई एम होल्डिंग द बैड थिंग्स इन माय मेमोरी, तो वो मुझे मेडिटेशन करने नहीं देगी।
द मोमेंट यू विल सिट, तो जो चीजें आपको अभी याद नहीं है, अभी तो हम हाँ, टॉकिंग कर रहे हैं, राइट, जब आप एकांत में बैठोगे तो वो मेमोरी से पॉप अप होंगी, क्योंकि मेमोरी में जुड़ी हुई है। हाँ, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए पहले तो मेमोरी का यूज भी ठीक होना चाहिए, कि लोगों की निंदा चुगली ना करो, हुँ, अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में एप्रिसिएशन रखो, लोगों के अच्छे पॉइंट रखो। अगर आपने उसमें गलत चीजें जोड़ी हुई हैं, कि आपने मुझे, लेट से एग्जांपल के लिए, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है 10 साल, बहुत, तो एक दिन मेरे से गलती हो गई, तो अगर आप, अब इट इज योर ऑप्शन, आपके साथ ही हुआ है कि मैंने आपके 10 साल सेवा की है, एक दिन मेरे से गलती हो गई, तो आप अगर आपने प्रॉपर यूज करना अपनी मेमोरी का, तो आपके विचार ये होने चाहिए कि कपूर साहब तो ऐसे हैं नहीं, 10 साल से तो इन्होंने हुँ, बड़ा हुँ, हुँ, अच्छा रहा, तो बिल्कुल, ये आप पता, इट मे बी ए बैड डे, कुछ ऐसा होगा, हाँ, लेट इट गो। लेकिन वो होता नहीं है। हम उसी डे को लेके उसको, जो अच्छाई है वो डिलीट कर देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। करना तो मैंने आई इसको नो, डिलीट था, बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैंने वो जो पहला सेव किया है, सेव को डिलीट कर दिया और न्यू पेस्ट कर दिया। अब जो मैंने, आपने अगर ऐसा किया है, तो यू कैन नॉट डू मेडिटेशन, आप कर आई ही नो, नहीं वही सकते तो मैं कह रही हूँ, मेडिटेशन। बट आपको एवरीबॉडी जब आप बैठोगे, रात को सोओगे भी, तब भी तो वही, आपको मैं याद आऊंगा कि भी हाउ का नहीं, सो। बट एवरीबॉडी, नरेंद्र जी, देखो, I'm not giving my example, I'm saying there must be some people कि जो, जैसे आप कह रहे हो कि उनको मेमोरी 10 साल का किया है, they will remember that. There might be some very few, or might be 50%, 50% याद रहेगा, 50% को नहीं याद, I mean रेशियो का पता नहीं, but I'm sure there are some people who do remember. तो आप जैसे आपने बोला कि गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, शायद नींद नहीं आई ठीक, या कोई बात होगी होगी, कार खराब होगी, कुछ भी हो गया तो वो बात रह गई, but 10 years they will remember. There are a lot of people who will remember too, like you said, there are some who will not, but there are some who will. तो फिर उसका लेकिन मतलब उस, ये थोड़ा, उसमें दैट मीन्स वो डिसिप्लिन थोड़ा कर लिया उन्होंने, अपने माइंड का थोड़ा डिसिप्लिन हो गए हैं, राइट? अगर उन्होंने वो सोचा है तो ऐसे सोचा है। सो ये तो बिल्कुल ठीक बोला है गार्गी, ये कह रही है, राइट, पीपल क्रिटिसाइज इन फॉर्म ऑफ निंदा एंड चुगली एंड ट्राई टू डिफेम ए पर्सन आउट ऑफ sheer jealousy and often bring their own निकम्मा candidate in the limelight. Agreed. नहीं तो उसमें, ये पॉइंट आप जो लेकर आए हो ना गार्गी जी, ये तो बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, माइंड की डिसिप्लिन के, व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन, ऑल दीज थिंग्स कम इन, बिल्कुल जो आपने बोला है जो कि उसमें जो मेडिटेशन करनी है, वो हाँ, माइंड माइंड का, मेडिटेशन मीन्स टू टेक केयर ऑफ द माइंड, माइंड को मैनेज करना इज ए मेडिटेशन। लेकिन माइंड के, मैंने द अदर डे आई एक्सप्लेन शेयर विद यू यस, दैट माइंड की जो इंफॉर्मेशन है, इट गोज टू द इंटेलेक्ट, बुद्धि को जाती है, और बुद्धि के आगे है मेमोरी, और मेमोरी के आगे है ईगो। तो अगर आपने, क्योंकि इट्स नॉट अ सेपरेट थिंग, नो नो नो, इट इट्स इज ऑल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। यस, तो अगर मेरी मेमोरी में मैंने गलत चीजें रखी हुई हैं, आई कैन नॉट डू मेडिटेशन, आई हैव टू clean up that mess before I be a serious student of meditation. नहीं तो वो मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं बैठा हुआ, मेडिटेशन होगी नहीं। वो आपको वो चीज याद आई जाएगी जब आप सोओगे भी। तभी कहते हैं कि अगर किसी से आपने घृणा करनी है, तो बी वेरी केयरफुल, कि जिससे आप घृणा करोगे वो आपके मेमोरी में स्टिच हो जाएगा, वो रात को आपको जब सोओगे तभी आपके सामने खड़ा हो। जब देखो जी, कई बात को, आई मीन दिस इज एन एग्जांपल, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट। कोई गलत बात किसने भी करी हो, एनीबॉडी कैन डू रॉन्ग थिंग, गलती से हो जाती है, हमारे से भी होती है, सबसे होती है दुनिया में, बट रात को जब तुम सोते हो, इफ यू स्लीप, एवरीथिंग कम्स बैक लाइक ए फ्लैश, ओहो मैंने गलती, ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए था, सो द मेमोरी ब्रिंग्स यू
right back to तुमने जो गलत बात करी तो मैं माइंड खुद बताता है. Your body tells you, your mind tells you did the wrong thing. How can you sleep after that? But there is a better way. जैसे वो आदमी जिसने हमारी निंदा की है, हमें क्रिटिसाइज किया है, बुरा भला कहा है, वो रात दिन हमारी मेमोरी में जम जाता है. सोते बैठते वही आदमी याद आता है. तो ये जो वाइज थॉट है वो ये कहती है कि अगर ऐसी लगन आप ईश्वर से लगा दो तो रात दिन आपके उस दिमाग में छाए होता रहे. है, of course, definitely. दैट इज द ठीक बात है. ऑब्जेक्टिव, दैट इज द मिशन ऑफ लाइफ, कि मेरे दिमाग में ईश्वर ऐसे आ जाए जैसे लोग घूम रहे हैं. लोग ना घूमे, Yes. ईश्वर की जो ईश्वरता है, डिविनिटी है, वो Yeah. मेरे दिमाग में जुड़ जाए. वो दैट इज द मिशन ऑफ लाइफ एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ Yes, मेडिटेशन. that is the best thing if you can do that. अभी नेगेटिव जैसे आपने कहा था, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी जो है निकाल दो. टेक इट आउट ऑफ योर, लाइक कंप्यूटर में जैसे आप फालतू ईमेल्स आती हैं तो डिलीट कर देते हो ना. सो द सेम थिंग यू शुड डू विद योर माइंड. टेक आउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स ताकि पॉजिटिव थॉट्स रहें. और इसमें ब्लेमबाजी कोई नहीं है. इट आई हैव टू डू, I have to, because nobody can enter in your body. Nobody can do that. You have to do it yourself. No, nobody. हम ये नहीं कह सकते कि उसने कर दिया, इसने कर दिया. आपने ये किया था ना कि I have to, like in my car, I have to buckle up. Yes. Buckle up नहीं Narinder ji, Rama ji कह रही हैं कि just when Narinder ji used to do meditation every week live at ILI, I used to learn one new thing every time. Now Veena ji has given the same platform. बिल्कुल ठीक बोला है. हम देखो ना ये प्लेटफॉर्म मैंने इसके लिए खोला है बिकॉज नरेंद्र जी अराउंड दैट टाइम आई थिंक वाज लीविंग ILI एंड LIC को थोड़ा जुड़ रहे थे. तब मैंने बोला कि अभी देखो सच अ लर्नड पर्सन, वी शुड गेट हिम. एंड हमारा प्लेटफॉर्म मंडे का बेस्ट है, बिगिनिंग ऑफ द वीक, यू नो. एंड दैट इज व्हाई आई चोज मंडे. ये तो मैं मंडे ट्यूसडे भी कर लेती. मैं कहा मंडे बेस्ट है, मंडे फ्रेश, वीकेंड के बाद आते हैं सब लोग, माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, थोड़ा सीखो, दैट्स द टाइम टू लर्न. तो ये जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं कहा इस वन, या दैट्स द रीजन आई वांटेड हिम टू कम ऑन मंडेज बिकॉज़ मेरे को लगता है कि मंडे इज बेस्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक. यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर, यू कैरी ऑन एवरी डे. यू नो, लर्न कोई एक चीज नहीं सीखो एवरी वीक एंड डू थिंग्स, प्रैक्टिस. एक बात आई जस्ट वांट टू से शेयर विद यू कि लाइफ इज सिंपल. Life is simple. We make it difficult. बिल्कुल ठीक बोला. Remember that. Yes, yes. We mess up and we suffer. We suffer only due to our misconception of the beautiful ideas. देखो सृष्टि जो बनाई है ईश्वर ने, he is the best engineer. उनका प्रोडक्ट कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता. लेकिन as a individual, I am misusing, abusing the system and I am suffering. और फिर उसी सफरिंग को दूर करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु. तो प्रभु भी हंसते हैं कि भाई मैंने तो सृष्टि ऐसी बनाई है, तुम ही इसी को स्पॉइल कर रहे हो. और फिर मुझे आप कहते हो इसको ठीक करो. और भाई ठीक तो आपने करना है. आप स्पॉइल ना करो इसको. बोलो आपने. पर देखो ना ये some people need the guidance to do. उनको गाइडेंस भी तो चाहिए होती है ना. इस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए, तो उसमें आप आते हो सिखाने के लिए. गाइडेंस चाहिए. बिल्कुल ठीक बोला. He gave a perfect product. हमने सारे लोगों ने अब्यूज किया हुआ है, किसी तरीके ने, किसी ऐसे किया हुआ है, किसी ऐसे किया हुआ है. So everybody needs that guidance from you to come on the line ताकि ठीक रहे. You know, like mind, we need to set it right. And most 90% of the people, they need the guidance. किसी ना किसी तरीके से गलत बात हो रही है सबकी. जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा मेडिटेशन करने का, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि गेट अप अर्ली एंड वेलकम द मैजेस्टी ऑफ द राइजिंग सन. राइट, बिल्कुल बात है. अगर मैंने मेडिटेशन करनी है तो जो सृष्टि को चलाने वाला एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, जब वो राइज कर रही है, राइट, आई शुड वेलकम. उसकी जो पहली ग्लो है जब आपके चेहरे पे पड़ेगी
तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, क्योंकि दैट इज द प्योर एनर्जी, प्योर कॉस्मिक एनर्जी। हम सोए होते हैं, हम सोए रहते हैं, तो आई वी लूज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हाई वी सफर। लेकिन अगर ऐसा डिसिप्लिन के थ्रू किया जाए, तो देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द नेचर, नेचर अंदर की लेयर बदल जाती है। बिल्कुल And ठीक then बात, when you sit in the meditation, आपको सूरज भगवान के दर्शन होंगे, बंदों के नहीं। बंदों के नहीं। या बिल्कुल ठीक बात है। देखो हम सुबह-सुबह जल्दी उठे तो कितना ब्यूटीफुल लगता है। अगर आसमान में देखो, माय गॉड, इट्स या ब्यूटीफुल, प्योर, न्यू डे इज़ बिगिनिंग। And the night also, when you before you go to sleep, if the sky is clear, कितने स्टार्स वगैरह, मतलब पता नहीं क्या-क्या वहाँ पर है, हमको तो पता ही नहीं। हम तो एक छोटी-सी जगह अर्थ में बैठे हुए हैं, राइट? ऊपर वाले पता नहीं कितने सारे हैं, मिलियंस। I don't know who's there, we don't know. This is a big mystery. वीरेंद्र जी, ये बात आप किस दिन इस टॉपिक में ही बात करनी है कि जो ऊपर देखते हैं हम इतने सारे स्टार्स एंड पता नहीं क्या गैलेक्सी में, मार्स नहीं, एंड वीनस, पता नहीं एक क्या बार क्या हम एक बार हम कैनेडी सेंटर में गए है। ऑन ए वेकेशन, तो वहाँ वो देखने गए शो। इट वाज अनएडिटेड शो फॉर 1 hour बाय द हबल स्कोप इन द स्काई। स्काई तो हॉल में 500 people थे, इट वाज अ बिग हॉल। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। एंड आफ्टर द शो, आफ्टर 60-minute शो, इट वाज अनएडिटेड, जो उसने देखा वो दिखा रहे थे। Everybody, when they came out of the hall, they were all dumb. Nobody was talking. को जो तमाशा देखा, देखा, it is mind-boggling. माइंड बॉगलिंग, वो मैंने करोड़ों, मैंने मिलियन, ट्रिलियन स्टार्स घूम रहे आई हैं, नो एंड हमारी ये जो धरती है, हाँ, जिसको ये हम बिल्कुल जमीन कहते हैं, इट इज वो एक लिटिल स्पेक है, वो वहाँ है ही नहीं। मैं सोचती हूँ कई बार, वीरेंद्र जी, मैं ही सोचती हूँ, पता नहीं मे बी अभी बड़ी, कि व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट आर वी, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन ओवर देयर, क्या ये क्या है, व्हाट इज दिस, और हमारी ऑपरेट तो कर रहा है ना, हमारी जमीन वहाँ दिखाई देती नहीं। नहीं देती नहीं है, बट somebody is ऑपरेटिंग ना, कोई ऑपरेट तो कर रहा है सब कुछ। नहीं, एक बंदा है ना, ऑन ए लाइटर नोट, एक बंदे की डेथ हो गई तो वो ऊपर गया। तो जब ऊपर गया तो वहाँ धर्मराज ने पूछा, भाई कहाँ से आए? ही कुड नॉट एक्सप्लेन। वो कहता जी वहाँ गंगा होती है, हिमालय है। वो कहता यहाँ तो हजारों गंगा, करोड़ों जो है वो हिमालय पर्वत घूम रहे हैं, गिव मी द एड्रेस। ही कुड नॉट गिव द एड्रेस। लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं, तो अपने मकान में बैठ के हम ये समझते हैं कि हम यूनिवर्स के मालिक हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक ऊपर बात है। जाके हम अपनी जमीन नहीं बता सकते कि कहाँ से आए। पर देखो ऊपर वाले को भी क्या मालूम कि कहाँ से हम आए हैं, तो छोटा सा अर्थ है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर वाला भगवान बाबा जी जो भी है, कि ये कहाँ से आए हैं, हमारे पास इतने सारे हैं, मेरे तो मिलियंस एंड मिलियंस हैं, ये कौन सी जगह है अर्थ। नहीं, उसने कहा वहाँ गंगा है। वो कहते हैं यहाँ हजारों गंगा घूम रही है, तुम कौन सी गंगा कह रहे हो? वही तो मैं कह रही हूँ ना, ही वो भी कंफ्यूज हो गया, कौन सी जगह है अर्थ। हमें तो कभी इतने सारी मिलियन मार्स है, ये वीनस है, ये है, तो वो है, अर्थ क्या चीज है, आपको सबको पता ही नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी जब केयरफुल। जब ऐसे माइंड, जैसे आप बातें कर रहे हैं, हम जैसे ऐसे माइंड खुलता है, नाउ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ मेडिटेशन, नाउ यू विल अप्रिशिएट। Yeah, that's what I'm saying. I always think these are the things I think about every day. Okay, what is this? Where are we? What is this thing going? Like ऊपर देखो तो ये जो मैं कह रही हूँ, रात को देखो तो पूरी दुनिया इज अ डिफरेंट थिंग और डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट वर्ल्ड। सुबह देखो, ऊपर चांद, वो सन को देखो, तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट सब कुछ होता है। तो हम सोते सोते ही सब कुछ देखते नहीं है, सो ही रहते हैं, देखो ना, और पहली नोटिस ऑल हमने द और हमने अपनी जो लैंग्वेज यूज की हुई है ह्यूमन बीइंग ने, वो उल्टी लैंग्वेज है। हम कहते हैं जी सूरज निकल आया, और सूरज तो निकला ही हुआ है, हम घूम गए। सूरज निकला है, बिल्कुल। रात को सोते हैं तो चांद तारे कितने, आई मीन यहाँ पे तो कम नजर आते हैं, बट सम टाइम यू डू सी चांद नजर आता है। यू शुड सी द सर, आई मीन द मून, द नाइट इज लाइक, लुक्स लाइक इज मूविंग, लगता है। तो देखो, घूमा तो हमारा मकान है कि हाँ हम घूम गए, हाँ सूरज तो खड़ा ही है, ओ हाँ सूरज तो बिल्कुल, कहीं। तो इट इज दैट इज आई एम सेइंग। हमारी लैंग्वेज भी जो है वो थोड़ी डिसेप्टिव है। हाँ, सन इज स्टेशनरी, द अर्थ इज मूविंग। यस, मूविंग, वी आर मूविंग, यस। लेकिन हम सुबह उठ के तो
हम जो वोकैबुलरी यूज करते हैं, और सूरज निकल आया और सूरज डूब गया। सूरज But they have to go deep. Deep नहीं जाते ना, ये तो चक्कर. We don't do that. But very interesting. To one day we will talk about that. I mean, mystery क्या है? What is a mystery of all this? You know? Now, on a serious note, let us serious note, जो मेडिटेशन है वो एक डिसिप्लिन है। उस Yeah, डिसिप्लिन से that's what पहले I'm saying. जिस बॉडी में आपका माइंड रहता है, उस आउटर फ्रेम को ठीक करना है, अपनी खुराक को ठीक करना है, अपनी स्पीच को ठीक करना है, अपनी थॉट्स को ठीक करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे बैठना है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड कैसे रहे, Yes. एनर्जी चक्कर में एनर्जी रहे। ये सारी इंफॉर्मेशन कर लेने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, when you will sit, the body will cooperate with you, the mind. That's true. That is true. तो then the mind, ultimate जो उसका ऑब्जेक्टिव है, you have to create a focused mind. फोकस के लिए आप कर रहे हो, माइंड को फोकस करना। योर माइंड इज जंपिंग अराउंड लाइक ए मंकी। I know. बिल्कुल ठीक बात है. That's when you have to really focus on what you're doing. अपना, you're closing your eyes. That means just clear up everything. You know, slate clear होनी चाहिए उस वक्त. So that you can focus. हम माइंड को फोकस करते हैं बहुत फ्रैक्शन टाइम के लिए। Yeah. जैसे सर्जन है, when he is doing surgery, right, delicate surgery, at the tip of the blade, उसका जो माइंड फोकस होता है, तभी तो सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल होती है। That is the miracle of the focused mind, and it is not a story, it is a day-to-day life. Yes. ऐसे ही जब हमारा भी माइंड फोकस्ड होता है किसी भी चीज पे, जैसे हम जब बहुत उदास होते हैं तो आंखें भी खुली होती हैं, टीवी भी चल रहे होते हैं, लेकिन आपका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप कुछ और ही सोच रहे हो। बिल्कुल। और जो सोच रहे हो वो फोकस माइंड उधर को चला गया। जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है उसका जो आर नॉट कंसर्न। तो माइंड के फोकस माइंड के जो मिरेकल्स हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि जब हो जाता है तो सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलती है। तो फोकस्ड माइंड को क्रिएट करना, उसके लिए एफर्ट करनी पड़े। इट्स नॉट ए फ्री लंच, नॉट ए फ्री थिंग। एफर्ट अपने लेवल के ऊपर, जिस लेवल पे भी जो है, पहले तो नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को जब आप प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, अदरवाइज इट इज इंफॉर्मेशन। दैट्स ट्रू। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो ना, ये लिख रहे हैं, गार्गी लिख रही है, समटाइम्स स्टेयर एट द मून और द स्टारलिट नाइट ड्यूरिंग माय नाइट टाइम वॉक एंड फील द कॉस्मिक एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है, एनर्जी तो फील होती है व्हेन यू लुक एट ऑल दिस थिंग्स इन द नाइट स्पेशली। मैं अभी फोटो ले रही हूँ तो ये सब होता है। दैट इज ट्रू, आई एग्री। मैंने ये भेजनी है फोटो। तो चलो नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐसी इसी टाइप का टॉपिक करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत मजा आया। तो I mean, everybody, they all were there and all listening, and all the इतने सारे वो listening and watching, they're saying, they agreeing with everybody. Good morning, Rekha ji. Super good job, you know. अच्छा, मेरा आपका लिख रहे हैं, thankful to नरेंद्र जी, they all watching, and इस प्लेटफॉर्म का भी बड़ा थैंक यू कर रहे हैं कि मैंने ये करा है। मैंने अभी पहले भी कह रही थी कि मंडे को इसके लिए किया है, so that our mind opens up and we learn few things for the following week, then we can practice. पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करो, whatever you learn Monday, practice that. And also I advise everyone to go back and listen to the whole today's program again and pass it on to your friends and relatives, जो भी हैं, acquaintances, ताकि वो भी सुने, and you know, everybody might learn something. You know, that's how you learn. Share करोगे तो तभी learn करोगे, you know. That's what I believe in. So thank you so much for joining us today. हम फिर नेक्स्ट मंडे नरेंद्र जी को लेकर आएंगे। एंड टुडेस टॉपिक वाज वेरी It's an honor and humility to come and share thoughts on a day-to-day life subjects. Yeah. One thing I would just say, just going away now, that be very careful कि किस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नॉलेज के बिना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गलत बन जाओगे।
क्योंकि प्रैक्टिस जिस चीज की करते हैं हम बन जाते हैं. तो बी वेरी केयरफुल कि जिस चीज की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ एंड व्हाट आई वांट टू अचीव. अगर मैंने सुनी सुनाई बात के ऊपर कोई चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ विदाउट रॉन्ग इंफॉर्मेशन Right. तो मैं रॉन्ग बन जाऊंगा. So be very careful Yeah. because this is your body, this is your journey. You come alone, you go alone. It is your prime responsibility to polish your personality and stay away from distraction and appreciate the nature around you. That's true. That is true. बिल्कुल ठीक बोला आपने. So I will say thank you so much, Narinder ji, for joining us today and इतना अच्छा आपने explain किया. And once again, I said, please, everyone who joined us, please listen again and forward to your friends so that they can get some, learn something also. So I'll appreciate that. And thank you. And I want to tell Thank you. everybody today's 1 year for Dil Diyan Galla. In case you missed the beginning, मैंने बोला था 1 साल हो गया हमको शुरू किया था. मैंने उसके साथ नूपुर के साथ किया था. So I'm thankful to Baba Ji ऊपर वाले के यहाँ तक हमको ले आया है. And then we are here 1 year. Tomorrow is the actual date, the 18th, but today Monday था. So It's a big milestone in the yeah, journey of your life, yes, it is. and you should be proud of that. I am very happy because along the way I also learned a lot. So 1 year में मैंने बहुत कुछ सीखा है, and I want to keep on learning. You know, like learning is every day. कुछ ना कुछ सीखते हैं हम. So this was a learning experience, and I'm learning every day also by meeting people and talking. जैसे आप आते हो और भी कोई आता है तो बात करने में you learn a lot from each other, you know. So that's what this whole platform is all about. So thank you everybody who joined us today. Okay. Keep on coming. Join us again tomorrow. Thank you so much and have a wonderful Monday. Thank you, Narinda ji. Thank My you. God, Thank you, Veerandi. Thank you very Thank you much so much. for this. Thank you. Thank you. नहीं, thank Wish you. you good health always Thank you. and Thank you. continue your divine work. Thank you. I really